Hello children, how are you? I hope you are fit and fine at your home. Yesterday we already started chapter 4, that is the Delhi Sultanate, and today we will cover second dynasty, that is the Khalji dynasty, and third one Tughlaq dynasty. So without wasting time, just let's get started. So children, on the last video we started already chapter 4, that is Delhi Sultanate, and we covered one dynasty, that is the slave dynasty. In that dynasty we have Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Rajia Sultan and Balban. And today we will cover the next second dynasty, that is Khalji dynasty. It was started by the Khalji's ruler. So it started from 1290 and it was an end of 1320. So without wasting, just let's get started. Here I have a flow chart of Khalji dynasty. It started from 1290 by the Jalaluddin Khilji. Jalaluddin Khilji was very old person. He was a 70-year-old man. So very soon he decayed from 1290 to 1296. 6 years he उसने work किया. Then after that we have Alauddin Khilji, very ambitious young man, and you must hear about that name of Alauddin Khilji. He was a very distracted and very brave and very cold-blooded person. And have you must heard about the movie of Ranveer Singh, who played the role of Alauddin Khilji in a Padmavat. So he was a nephew of Jalaluddin Khilji, and he ruled from 1296 to 1360. Very long period, and almost all over the territory of Indian territory he ruled over this under the Khalji dynasty. So let's start about the Khalji dynasty. Jalaluddin was the founder of Khalji dynasty. He was already 70 years old. 70 years का फिर ruler कैसे rule करेगा? He was a very old person. In 1296, Alauddin Khilji, his nephew and son-in-law, had him murdered and captured the throne. And ऐसा कहा जाता है कि Alauddin Khilji ने उनको मार के गद्दी हासिल की. It's built by these rulers. Alauddin Khilji. Alauddin Khilji was an ambitious young man. He believed that defense, consolidation and expansion could all go together. He also wanted to conquer the world and referred himself as a Alexander or सिकंदर सैनी. उसने अपने आप को उपाधि ली हुई थी जैसे सिकंदर था, बहुत ambitious person था और वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था, पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था. इन द सेम वे उसने भी अपने आप को उपाधि ली हुई थी अलेक्जेंडर और सिकंदर सैनी, है ना, कि मैं भी पूरे कॉन्कर करूँगा. और उसका बिलीव था कि स्ट्रॉन्ग आर्मी और कंसोलिडेशन, टेरिटरी का कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन, जो उसका एरिया है उसको एक्सपेंड करते जाओ, वॉर से जीतते जाओ. ड्यूरिंग हिज रेन द मंगोल्स इन्वेडेड इंडिया 5 times. और मंगोल अपन पढ़ चुके हैं, एक क्रूअल ट्राइब थी जो टाइम पे दिल्ली पे अटैक करती थी और वेल्थ ले जाती थी, लोगों को मार देती थी. तो खलजी के टाइम 5 टाइम अटैक किया दिल्ली पे, लेकिन पांचों ही टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने उनको दबाया. बट एवरी टाइम अलाउद्दीन खिलजीज जनरल्स एंड देयर अटैक्स विद हैवी लॉसेस टू देम, और एवरी अटैक सप्रेस्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी. It is a picture of Alauddin Khilji. It's very old picture. It's portrait on the during of 1295. So ऐसा दिखता था अलाउद्दीन खिलजी. और आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, जिसमें गेटअप रणबीर कपूर ने उसका ऐसा ही लिया है अलाउद्दीन खिलजी का. So that was the होल एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. यहाँ से स्टार्ट हुआ था. इंडिया का मैप है ये, और पूरे इसमें डेक्कन को कवर करते करते और साउथ तक, यहाँ तक उसका पूरा एम्पायर था, खिलजी एम्पायर का. वेरी वेरी ह्यूज एम्पायर. और सारा उसने कैसे युद्ध जीत के फोर्ट पे अटैक कर करके लोगों को हरा के, राजपूताना को जैसे पद्मावत में देखा आपने, जौहर मूवी में चित्तौड़ लिया, फिर आगे बढ़ता गया, फिर उदयपुर, फिर इसमें जालोर, फिर डेक्कन चला गया, फिर साउथ में चला गया. इस तरीके से वो पूरी टेरिटरी बनाता गया, खिलजी एम्पायर बनाता गया. जौहर एक टर्म आएगा आपके, जिसमें पद्मावती रानी पद्मावती ने जौहर लिया था चित्तौड़ में, जिसमें कि रानी जब राजा हारता दिखता है तो जो हिंदू राजा थे, है ना, जो राजपूत राजा थे, वो केसरिया धारण करके कैशल से के गेट खोल देते थे कि भैया मरना तय है. और वहाँ की जो रानियाँ हैं अपनी डिग्निटी, अपनी प्योरिटी के लिए, अपनी चैस्टिटी के लिए वो क्या करती थी, एक साथ का उसमें आग के कुएँ में कूद जाती थी. तो वो जौहर कहलाता था, है ना. पद्मावत में आपने देखा होगा, और कई राजपूत हिस्ट्री में भी इसका डिस्क्रिप्शन है. सो चित्तौड़ पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो रानी पद्मावती ने जौहर लिया था. ये दैट पिक्चर इज रिवील दैट रिचुअल, बैड रिचुअल अबाउट जौहर.
देन नेक्स्ट इज कॉन्क्वेस्ट द नॉर्थ. अब उसकी नॉर्थ जीतने की कहानी हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की 1297 to 1305. इन प्योरेस्ट ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट कॉन्कर्ड गुजरात एंड रणथंभौर. उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा इन सबको उसने एक्वायर कर लिया था. राजा कर्णा द राजपूत रूलर ऑफ गुजरात वॉज डिफीटेड. गुजरात का जो राजा था कर्णा वो हारा गया उससे, गोरी से, मोहम्मद इसके खिलजी से. खिलजी की जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. चित्तौड़ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड विविडली इन पद्मावत रिटन बाय द मलिक मोहम्मद जासी. मलिक मोहम्मद जासी एक हिस्टोरियन थे, लिखते थे. उन्होंने पद्मावत लिखी थी, उसमें डिस्क्रिप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और इसके जालो इसके चित्तौड़ के राजा का डिस्क्रिप्शन है. राणा रतन सिंह थे उसके. राणा रतन सिंह वॉज कैप्चर्ड बाय ट्रेचरी एंड चित्तौड़. तो और राणा रतन सिंह के मरने के बाद पद्मावती ने जोहर कर लिया था. अलाउद्दीन मेन ऑब्जेक्टिव इन अटैकिंग चित्तौड़ वॉज टू एक्वायर रानी पद्मिनी द ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ द राणा. ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी बहुत ब्यूटीफुल थी, तो उसका चित्तौड़ को एक्वायर करने का ये एक रीज़न रहा है. हिस्ट्री मस्ट बी मे बी समथिंग इज देयर. द राजपूत फोर्ट ब्रेवली बट लॉस्ट द बैटल. राजपूतों ने बहुत ब्रेवली अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई की, लेकिन बैटल में वो डिफीट हो गए. द लेडीज़ परफॉर्म द जोहर एंड पेरिस्ड इन फ्लेम्स. और एक साथ वो लेडीज़ सारी पद्मावती के साथ ही जो आगे और भी लेडीज़ थी फोर्ट की, वो आग के कुएं में कूद गई. Alauddin then attacked and plundered, destroyed many temples in the cities like Madhu, Ujjain, Thar, Chanderi और मालवा. और हमेशा मुस्लिम जो रूलर्स था उनको एक रिलीजन भी स्प्रेड करना था, तो वो क्या करते थे, जो हिंदू स्कल्पचर्स थे, टेम्पल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, फोर्ट हो गए, उनको तुड़वा देते थे. तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये डिस्ट्रक्शंस वाली पॉलिसी अपनाई. उसने माधु, उज्जैन, थार, चंदेरी, मालवा, गुजरात, रणथंभौर इन सब में उसने जो हिंदू टेम्पल्स और रिलीजन बिल्डिंग थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. नेक्स्ट अब वो आगे बढ़ता गया, डेक्कन की तरफ गया इन 1305 to 1311. अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु ट्राई टू कॉन्कर डेक्कन. डेक्कन को अभी तक किसी ने लिया नहीं था, वहाँ पे पल्लव्स और इनका ही वर्चस्व था. तो डेक्कन में वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर था जिसने की कॉन्कर करने की कोशिश की. मलिक काफूर वॉज द इंटरेस्टेड विद द टास्क. मलिक काफूर कॉन्कर्ड. मलिक काफूर उसका वो था, सेनापति था और बहुत ट्रस्टवर्दी था, बहुत बिलीव करता था अलाउद्दीन खिलजी उस पर. तो मलिक काफूर ने डेक्कन में देवगिरी को, वरंगल को, द्वारसा मुद्रा को और मदुराई को, इन सब इंपॉर्टेंट सिटीज़ को उसने एक्वायर कर लिया था. एरिया को, डेक्कन के एरिया को एक्वायर कर लिया था. डेक्कन पॉलिसी हिज चीफ एम इज कॉन्करिंग द डेक्कन वॉज इकोनॉमिक रादर देन द रिलीजियस. डेक्कन को जीतना उसकी पॉलिसी में क्या था, रिलीजियस न होके इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक वहाँ की वेल्थ लेना था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. ही टुक एनुअल ट्रिब्यूट एंड अमॉस्ट ग्रेट वेल्थ. और वहाँ से वो एक राजा लूट के राजा को वापस अपनी प्रॉपर्टी दे देता था, लेकिन कुछ अमाउंट उसको एनुअल इनकम खिलजी को देनी होती थी. ये ट्रीटी डिसाइड करते थे. तो दैट इज़ द डेक्कन पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी. Malik Kafur defeated in Viraprada and then went to the Rameshwaram to build a mosque at many places. After this, he returned to Delhi and Malik Kafur उसका पूरा ब्रेव सोल्जर था, एक जनरल था जो उसकी हर बैटल में उसकी हेल्प करता था. Okay, Alauddin adopted this policy because of the south was far off and it was difficult to rule directly from the Delhi. अब उसने क्यों उस डेक्कन की पॉलिसी उसने क्यों अपनाई थी, ये खलजी डायनेस्टीज़ में कॉइन चलते थे. ओके, अब उसने क्यों अप्लाई थी ये पॉलिसी, क्योंकि डेक्कन जो काफ़ी दूर पड़ता था दिल्ली से, तो इसलिए वो वापस रिटर्न कर दी उनकी प्रॉपर्टी और उनसे एनुअल अमाउंट कुछ राजा से फिक्स कर लिया खलजी ने. अब एडमिनिस्ट्रेशन अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, उसने बहुत सारे चेंजेस किए थे. द लैंड एंड प्रॉपर्टी विच वॉज गिवन टू द नोबल्स एज इक्ता. लैंड और प्रॉपर्टी जो दी जाती थी नोबल्स को, कोर्टियर को, सोल्जर्स को, वो इक्ताज कहलाती थी. मैरिज पार्टी और सोशल गैदरिंग और एनी सेलिब्रेशन वॉज बैंड. उस टाइम खिलजी के टाइम सब बैन था. ड्रिंकिंग वाइन इन पब्लिक वॉज प्रोहिबिटेड. ड्रिंकिंग वाइन इज ए पब्लिक इन ए प्रोहिबिटेड. ही वॉज ए स्ट्रिक्ट, ब्रेव एंड एम्बिशियस रूलर. एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम वॉज ऑर्गेनाइज्ड. स्पाई सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, इसलिए वो हारता नहीं था. ऑलमोस्ट सभी बैटल्स में वो जीतता था. मार्केट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कीप ए चेक ऑन द प्राइस. और मार्केट ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे प्राइस को, मार्केट में कि प्राइस बढ़ा हुआ है या कम हुआ है. द प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल वर फिक्स्ड. उस टाइम मार्केट में जो भी आर्टिकल्स आते थे, अनाज आ गया या वेसल्स आ गए या कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, उनके फिक्स थे, अपनी मनमानी नहीं कर सकता था कोई भी. Land revenue for all lands was refixed. He died
ओके, लैंड रेवेन्यू भी उसकी फिक्स किए हुए थे, है ना. सो इन दोआब द फर्टाइल लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, एक दोआब एरिया था जो गंगा यमुना का फर्टाइल एरिया था, यूपी बिहार के आसपास का जो अभी प्रेजेंटली एरिया है ना. उसमें भी टैक्स वॉज रेज्ड 1.5 टोटल प्रोड्यूस, उसमें वहाँ पे टैक्स ज़्यादा लिया जाता था क्योंकि वहाँ पे लोगों की इनकम होती थी, हमेशा पानी हमेशा रहता था उस लैंड पे. द रेवेन्यू रिकॉर्ड वर कैप्ट अप टू डेट, और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड थे उनको हम टाइम पे अपडेट किया जाता था. Alauddin Khilji died in the AD of 1316. Soon after, thereafter Khilji dynasty fell and supplanted by a new dynasty that was the Tughlaqs. और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ गई थी. ये कहा जाता है, ये भी एक सस्पेंस है कि अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर ने ही मारा था. कॉन्स्पिरेंसी है इस पर भी, एक मिस्टीरियस डेथ थी उसकी. नेक्स्ट वी हैव थर्ड डायनेस्टी, दैट इज़ अ तुगलक डायनेस्टी. दिस इज़ द कॉइन ऑफ दैट टाइम ऑफ एरा, तुगलक डायनेस्टी. अब आ जाते हैं हम तुगलक डायनेस्टी पे, जो कि खलजी डायनेस्टी के एंड होने पे बनी. अब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ तो 1316 में हो गई थी और तुगलक डायनेस्टी 1320 में आई. तो आप सोचोगे कि 4 ईयर्स कहाँ गए, तो 4 ईयर्स स्पैम होते थे बेटा. वहाँ पे अननेसेसरी छुटपुट राजा आते थे, छुटपुट कोई नॉबल्स आते थे जो कि लड़ाई झगड़ों में वो मारे भी जाते थे और उनका हिस्टोरिकल कोई रिकॉर्ड बना ही नहीं, या वो लेस इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. Next we have Tughlaq dynasty. It was started from 320 and ended near about 14th century. Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of this Tughlaq dynasty. Muhammad bin Tughlaq was a great ruler. He was a very intelligent, smart ruler, but by his foolish step, he declared in a history as a mad Tughlaq. पागल शासक कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को. Then we have Firoz Shah Tughlaq. These are the 3 rulers are very important in Tughlaq dynasty, and they did many welfares for the society, and so many things are done by these 3 rulers. So first we have Ghiyasuddin Tughlaq. Tughlaq dynasty was one of the most important dynasty of all Delhi Sultanate. This dynasty ruled about the century. Ghazi Malik, who assumed a title Ghiyasuddin Tughlaq. Ghazi Malik जो थे उन्होंने अपना टाइटल लिया था Ghiyasuddin Tughlaq. Was a founder of third dynasty of this Sultanate. Tughlaq dynasty third dynasty थी दिल्ली सल्तनत की, उसमें गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर थे. ही एस्योर्ड द थ्रोन फ्रॉम द खुसरो खान, द लास्ट रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी. उन्होंने खुसरो खान से थ्रोन एक्वायर किया था, जो कि खलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था खुसरो खान. इसलिए उसका वर्णन नहीं है क्योंकि वो दीज आर लेस इंपॉर्टेंट, हार्डली साल भर के लिए कोई आया फिर चला गया, इसलिए. ही रिफॉर्म्ड जुडिशरी एंड पुलिस डिपार्टमेंट. उसने जुडिशरी और पुलिस डिपार्टमेंट को रिफॉर्म्ड किया. ही कैरिड आउट मैनी वर्क्स फॉर द पब्लिक यूटिलिटी के लिए उन्होंने बहुत सारे वर्क किए. ही बिल्ट ए न्यू सिटी ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली. उन्होंने नियर दिल्ली में एक नई सिटी बसाई जिसका नाम तुगलकाबाद रखा. अभी वो र्यून है, अभी उसमें खंडर बचे हैं. एंड ही वॉज किल्ड इन द 1325. ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको मारा. मतलब हमेशा नेक्स्ट सक्सेसर सन ही होता था, तो वो थ्रोन के लिए एक दूसरे को मारना कॉमन था हिस्ट्री में. सो ही वॉज किल्ड इन 1325. नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा दिखता था और हिस्ट्री में उसको पागल शासक कहा जाता था. पागल शासक क्यों कहा जाता था, दैट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ही वॉज ए लर्नेड मैन. ही वॉज ए मोहम्मद बिन तुगलक. He was a learned man. He was a scholar of mathematics, philosophy, astronomy, logic and medicine, physical science. वो इतनी सब्जेक्ट का नॉलेज रखता था. ही वॉज ए वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, ही वॉज ए गुड फिलोसफर, ही वॉज ए गुड एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज ए गुड इन ए रीजनिंग, ही वॉज ए गुड इन मेडिसिन. हड्डियाँ जोड़ना और मेडिसिन बताना वो ये सब करता था, और उसने हॉस्पिटल भी बनवाया था. और फिजिकल साइंस में भी वो एक्सपर्ट था. ही वॉज ए पोइट ऑल्सो एंड गुड ऑरेटर. ऑरेटर मीन्स ए गुड स्पीकर. जो पब्लिक स्पीकर होते हैं वो कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ही वॉज ए गुड स्पीकर और गुड पोइट. इतना सब होते हुए भी वो पागल कहलाया. हिस्ट्री में उसको पागल शासक कहा जाता है. क्यों? क्योंकि कुछ स्टेप्स उसने नेशनल वाइड इतने फुलिश लिए कि वो सारे बैक टू बैक सारे उसके स्टेप्स क्या हुए, प्रूव्ड क्या हुए, फेल हुए. और लोगों से उसका विश्वास उठ गया कि ये तो पागल शासक है, ये हमारे लिए हमेशा कष्ट देता है, इसकी कोई भी पॉलिसी आम जनता के लिए हितकारी नहीं है. तो लोग उसको बिलीव कम करने लगे उसमें, और धीरे धीरे वो पागल शासक कहलाने लगा. बट ऑल हिज स्कॉलरली क्वालिटीज़ फेल्ड हिम इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ. और जितनी भी उसकी लर्नेड स्किल थी, जो लर्नेड पर्सन था, वो प्रैक्टिकल लाइफ में
फेल्ड प्रूफ हुआ. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर बट स्ट्रेंज मैन, ही नोन एज ए मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट. उसको मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट कहा जाता था कि भाई है बहुत इंटेलिजेंट एक्सपर्ट, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल उसे नॉलेज नहीं है कि आम जनता या अपने आवाम को कैसे खुश रखा जाए या उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए. सम ऑफ हिज प्लान डिड टुक स्ट्रेंज एंड ruined ऑलमोस्ट हिज एम्पायर. कुछ इसके प्लान ऐसे थे जो कि फेल हो गए और अपने एम्पायर के र्यून होने के लिए इसको मोहम्मद बिन तुगलक को रिस्पॉन्सिबल किया जाने लगा. क्या थे उसके प्लान्स? हिज प्लान एंड प्रूव्ड फेल्ड. फर्स्ट प्लान था उसका ट्रांसफ़र हिज कैपिटल. दिल्ली से उसने दौलताबाद या देवागिरी उसने शिफ्ट की थी, जो कि प्रूव्ड फेल हो गया. वो हम डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन में. And second, he started token currency, and third, he started taxation in a doab. So all these steps proved fail, and the financial system of the state began collapse and the desperation, and the sultan ordered the copper currency to be returned. And these steps of Tughlaq proved failed, and in the history he famous as a foolish Sultan. This step also resulted in a great loss of the government. So Sultan paid him huge money whenever he faced their threat to make the threat, and financially conditions he planned to conquer to China and Persia also, but gradually he proved failed because of his foolish step. तुगलक की डायनेस्टी को हम देखें तो इतनी जो डार्क ग्रीन एरिया है ये तुगलक डायनेस्टी है, इतनी कवर की हुई थी पूरी ऑल ओवर इंडिया, इधर पाकिस्तान क्योंकि उस टाइम हमारा ही एरिया था ये, और साउथ डेक्कन भी और साउथ भी, और इधर ये पार्ट भी इंडिया का जो कि तुगलक के अंडर में ही आता था. इतना बड़ा लार्ज एरिया तुगलक डायनेस्टी के उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में था, और तुगलक रूलर्स के भी था. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फुल स्टेप का डिस्क्रिप्शन करेंगे, और नेक्स्ट जो 2 डायनेस्टीज़ बची है, सैयद डायनेस्टीज़ और लोधी डायनेस्टीज़, और डाउनफॉल उनके दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो चिल्ड्रन, दैट्स इट फॉर टुडे, and I hope you are doing all the homework and classwork and all subject positively, and you start learning for your examination also. Thank you children for watching. Come to the homework section. You have to do in your history notebooks. Chapter 4. Come to the question first. How have the court chronicles helped us in the writing the history of Delhi Sultans? Chronicles means the writing in a order, in a years, or in a means whatever the dynasties. First they are wrote about the founder, then the next ruler, then next ruler. Relevantly जो लिखा जाता है उसको chronicle कहते हैं. Year wise और date wise और ruler के जो accordingly जो dynasties में 1 by 1 जो आते हैं वो that is chronicles. So historian written chronology various Delhi Sultans during those times, like Amir Khusro's Tughlaqnama and Tarikh-e-Alai. Barani's book is Tarikh-e-Firoz Shahi, and Firoz Shah's book Futat-e-Firoz Shah, and Makhzar-i Afghan. These are the books written. On all these books throw a great deal of light on the personality of Delhi Sultans, because it all written by on the time of those period. So chronicle help a lot. Describe the downfall of Delhi Sultans. What was the downfall of Delhi Sultans? Downfall of Delhi Sultans were like Hindu were maltreated and forcibly converted into Islam. They were maltreated and converted into Islam, so that's why they never faith on the Muslim rulers, and they believed that they are not good for the Hindu religion. So these royal court was always by the Muslim ruler or Muslim nobles. So Hindu always maltreated. Their temple were destroyed. Their temples were destroyed and converted to Islam, so that is why they were made a pay of jizya. Even Hindu who converted into Islam could not enjoy the confidence of the sultans of Turkish nobility. Most of the sultans were pleasure loving and weak rulers, so these Hindus never trust them. The army was ill organized. The army was ill disciplined and ill organized, and most of the sultans depended on the army of their nobles. The vast empire was again the curse. Vast empire and weak ruler again the downfall of the Delhi Sultans. There were no defined law of succession. Always law of succession was not there. Always the continued wars, and
the nobles always search in opportunity to rise the revolt against the weak sultans. So there was a no law of definite law. And the next was the invention of Mongols, and always time to time the inventions of Mongols was a main reason, main cause to downfall the rulers, sultan, that Delhi dynasties fall down. Next we have matchups. Alauddin Khilji adapt a title Sikandar-e-Seni. Temur was a Mongol leader. He was a bit cruel and attacked India many times for the wealth. Diwan-e-Insha is called state correspondence. Pargana was had by the Amil. So these are the matchup you have to do in your notebooks, children. Okay. Thank you a lot. Have a nice day and take care of yourself.